First of all, on the behalf of Creative School Administration, I would like to welcome all the participants, our esteemed speaker, and viewer of this webinar. Today, as a participant, we are having Mr. C.A. Pritam Goswami sir, who is a founder member of Advisory Board of Creative Group of Education. He is an author, international motivator, life coach. We are having with us Dr. Deepak Raj, the administrator of Creative Group of Education. Mr. Satish Garg, the faculty of chemistry. Mr. Hemendra Gupta, faculty of mathematics. Mr. Sunil Mishra, faculty of mathematics, IIT JEE. Mr. Gaurav Taluja, faculty of physics. Mr. Govind Sharma, faculty of economics and in charge of Creative Commerce Academy. Mr. Abhay Khandelwal, faculty of Mr. Lokesh Sharma, faculty of Geography, coordinator of Creative Arts Academy. Mr. Dubeji sir, who is giving us all the technical support, and along with this, Mr. Jonty Malhotra sir, who is also giving us the technical support. Now, after the introduction of our participants, I would like to invite Dr. Deepak Raj sir to give a brief introduction about this webinar. Over to you, Dr. Deepak Raj sir. Excuse me, sir. Will you unmute, please? Good evening, all. Good evening. I hope that you all are very healthy and safe at your home. And I also pray to God for a very good health of your all family members. Right now, I don't know that how many students is right now connected with us, but today day is very special in the history of Gangapur city, and I can say in the history of education of this area, because a long research which was going from last 3 years is now on their final mode, and today we are able to develop a platform, to develop a portal from which we can connect to any student of creative school from any part of the world. Before starting, I want to be heartiest thanks to Honorable Shri Pritam Goswami sir, who is our founder member of School Advisory Board, our financial advisor of Creative Group of Education, my very good friend, and you all know about his personality that he's a very intellectual, motivational, international level speaker, life coach, NLP trainer. Dear student, you will be also happy to know that today we have all the good teachers who taught you in your 11th, 12th class and who just try to give their best for your life, for your career. I think you will be also happy to know that today you can see all them
on your screen. Today we have with us, as Neeraj told you, your science department head, Neeraj Mishra ji, one of the top pillar of Creative School, group of education from last 20 years, our Satish sir, your Hemant sir, Sunil Mishra ji, Govind sir, Abhay ji, Lokesh ji. They all are the main strength of Creative Public School, Creative of Education, who is trying to provide the best education to the area of these students. Dear student, today we have two very special person. I should say they are the main person. Due to them, today we are able to launch this portal of Creative School, Mr. Jonty Malhotra ji and Shriram Dubey ji. I should say about Jonty Malhotra ji, he is the man who convert my vision, my idea in education regarding to connecting my all student through this portal. Dear student, after doing, आप सब सोच रहे होंगे आज, I should just talk little your familiar way. आप सब सोच रहे होंगे आज कि सर अचानक आप सबको कैसे हमारी याद आई, अचानक दोबारा कैसे आप सब दोबारा हमसे जुड़ना चाह रहे हैं. तो जस्ट आई वांट टू बी माय मेन पर्पस टू कम इन दिस फर्स्ट सेशन कि आज हमारा मेन पर्पस ये था कि आई जस्ट रिमेंबर माय सम वर्ड. बिफोर 3 years बिफोर वी हैड ए मीटिंग ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, और उसके पहले जैसा कि आपको मालूम है कि आपके क्रिएटिव स्कूल में हमारे देश के कई सारे प्रतिष्ठित ब्यूरोक्रेट्स, ऑनरेबल जुडिशरी मेंबर्स और कई डिग्निटीज स्कूल में आती रहती है. हम उन्हें इनवाइट करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, और वो सिर्फ हमारा विजन देख के, गंगापुर के अंदर एजुकेशन लेवल देख के और रिजल्ट देख के दे एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन एंड दे कम टू गंगापुर सिटी. व्हेन दे कम, तो उनसे हमारी कई सारी बातें होती हैं स्कूल के बारे में, एजुकेशन के, दुनिया के बारे में. तो ऐसी जब हमारी बात चल रही थी और एडवाइजरी बोर्ड में हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ हमारे मेंबर्स ने एडवाइस किया कि सर आप लोगों के स्कूल के जो बच्चे पास आउट होते हैं, जिनको हम एलवाई कहते हैं, उन बच्चों से आप कैसे कनेक्टेड हैं. मैंने कहा सब लोग फेसबुक पे हैं बच्चे, टीचर्स उनसे बात करते रहते हैं, पोस्टिंग भेजते रहते हैं. कि नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन इट्स नॉट ए सिस्टमेटिक वे. फिर उसके बाद जब हमने डिबेट शुरू करी तो मुझे सरप्राइज हुआ कि हमारे वर्ल्ड की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, मैं ऑक्सफोर्ड की बात करूं, हार्वर्ड की बात करूं, कैम्ब्रिज की बात करूं, इंडिया की बेस्ट आईआईटीज की बात करूं, एनआईटीज की बात करूं, तो मैंने देखा उन सब अच्छे इंस्टीट्यूट्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है. वो स्ट्रेंथ होती है उनका एलुमनाई फोरम. एलुमनाई फोरम मतलब जो स्टूडेंट वहां से, आप दिल्ली की, इंडिया की बात करते हैं तो एसआर कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज है, कई सारे आप जानते हैं. तो पूरा मैंने रिसर्च किया, पूरा स्टडी किया इस टॉपिक को, तो मुझे मालूम चला कि जितने भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है उनका एलुमनाई फोरम. यानी कि जो बच्चे वहां से पढ़ के बाहर निकलते हैं वो सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और उन सब बच्चों से कनेक्शन से फायदा मिलता है कि वो बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, जब उनसे आइडिया हमने बात करी, इस आइडिया पे रिसर्च किया, इस आइडिया को हमने एक्सप्लोर किया, तो मालूम चला हमें कि दिस इज अ मैजिकल थिंग, दिस इज अ मिरेकल. हमें मालूम ही नहीं है आज हमारे गंगापुर की क्रिएटिव स्कूल के कई सारे बच्चे सैन फ्रांसिस्को में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, सिंगापुर में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कई सारे बच्चे हमारे मिडिल ईस्ट में हैं, कई कंट्री में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं स्कूल के, गंगापुर सिटी के बच्चे काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें. तो डियर स्टूडेंट, फिर मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि हमें एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर ये सारे बच्चे एक जगह पर आकर, एक मंच पर आकर, एंड द बिगेस्ट पर्पस ऑफ दिस पोर्टल इज दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. जितने हम लोग कनेक्टेड रहेंगे आपस में, जितने हम लोग जुड़े रहेंगे, उतने हम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे. तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? सपोज आज मुझे मालूम चला हमारे कई स्कूल के बच्चे अमेजन में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, बैंगलोर में भी हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, कनाडा में भी बच्चे काम कर रहे हैं. सपोज कनाडा में कोई जॉब पोस्टिंग निकलता है कि दे रिक्वायर्ड सम वेरी एक्सपर्ट टेक्निकल, तो वो बच्चे हमारे जो स्कूल के हैं वहां से उसको लेके, और इस पोर्टल जो हम अभी दिखाने वाले, लॉन्च करने वाले हैं, मैं चाहूंगा दुबे जी बीच बीच में यदि पॉसिबल हो सके तो आप यदि इफ यू कैन लाइव द वेबसाइट पोर्टल, तो उस पोर्टल पे आके बच्चे उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड दे कैन पोस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूट. आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी वैकेंसी निकलती है, जॉब निकलता है, तो आप सबसे अच्छी बात है वहां पोस्ट कर सकते हैं. पहली बात. दूसरी बात, इसके अंदर फिर हमने एक पॉइंट एड किया है कि हमारे बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट ऐसे हैं, दे वाज ए वेरी गुड स्पीकर, दे वाज ए वेरी गुड सिंगर, अच्छे स्पोर्ट्समैन थे. तो आपको अपना कोई भी टैलेंट का एरिया, कोई भी टैलेंट की बात यदि आपको एक्सपोज करनी है, यदि आपको शो करनी है, तो वी हैव डेवलप ए पोर्टल, ए कॉर्नर, अ पोर्टल दैट इज टैलेंट कॉर्नर.
और उस टैलेंट कॉर्नर में आके आप अपना वीडियो और अपना वो जो आपकी इमेज है पोस्ट कर सकते हैं और उसको सारे लोग देख पाएंगे। इसके साथ साथ हम इस पोर्टल के ऊपर जितनी भी गंगापुर सिटी की लेटेस्ट जो आपका आसपास के एरिया है उसमें ऐसे इवेंट जो पॉजिटिव होते हैं और आप अच्छे होते हैं, उन सबको भी आप आके यहाँ पर लेटेस्ट आपको ब्रेकिंग न्यूज और डेली के अपडेट्स आपको वहां मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है, इस पोर्टल पे हमने एक वेबिनार सीरीज शुरू की है, जिसका कि आज पहला दिन है, पहला एपिसोड है। ये वेबिनार सीरीज हर 15 डेज में होगी और इसमें आपको देश दुनिया के बिगेस्ट सेलिब्रिटीज को हम लाने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरुआत प्रीतम सर के साथ कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जो भी देश दुनिया के अच्छे बिजनेस कोच, अच्छे लीडरशिप ट्रेनर्स, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छे लॉयर्स और हर फील्ड के जो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी खुद की मेहनत से अपने आप को जीवन में इस लायक बनाया है, क्या देश दुनिया उनकी तारीफ करती है। अब वो वक्त भी दूर नहीं कि आने वाले 3 और 6 मंथ के बाद कुछ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी हम इस पोर्टल पे लाने वाले हैं, जो आपसे अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन के संघर्ष शेयर करने वाली है। और इसका टाइम चूंकि अभी हमने थर्सडे को शुरू किया है 9 PM पर, हमें लगता है कि सारे बच्चे फ्री होके वीक में 1 डे आ सकते हैं। उसके कुछ समय के बाद फिर आप लोगों में से हम इसका एक इलेक्शन कराएंगे, एक बॉडी एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सब अपॉइंट्स करेंगे एंड दे विल डिसाइड कि बाकी सारी एक्टिविटीज हमारी इस एलवाई सेशन की कब होने वाली है। इसके साथ साथ ही जैसे ही सारी परिस्थिति नॉर्मल हो जाती है, वैसे ही हम लोग इसके बाद आपकी एलवाई मीट शुरू करेंगे, फिजिकल एलवाई मीट शुरू करेंगे, जिसमें आप सब लोग यहाँ आके अपने दोस्तों से इसकी डेट हम करीब कोशिश करेंगे कि 3 मंथ या 6 मंथ पहले इसकी डेट फिक्स कर दें। और जब आप सब लोग गंगापुर सिटी आते हैं तो दोस्तों से मिल सकें, फैमिली के साथ मिल सकें, छोटा सा लंच हो, डिनर हम साथ साथ हो, ऐसा भी है फ्यूचर में। इसका हमने कॉन्सेप्ट नोट इसका हमने प्लान किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप आज मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब देख पा रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको शेयर करेंगे। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, इसका द मेन मिशन बिहाइंड दिस क्रिएटिव एलुमनी पोर्टल इज दैट जस्ट टू एस्टेब्लिश a strong network between all the students who have passed out from creative and who's going to pass in coming future. आज हमारा मालूम होगा स्कूल का करीब 15,000 स्टूडेंट्स का डाटाबेस हमारे पास स्कूल का है। 15,000 स्टूडेंट्स का डाटाबेस हमारे पास है। इसमें 3,000 स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी स्टूडेंट पास आउट होकर निकल चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उन सब बच्चों को इस पोर्टल पर लेके आएं, उनका रजिस्ट्रेशन करें और उन सबको बच्चों को दुनिया के बेस्ट नॉलेज, ट्रेनिंग, लाइफ कोच के बारे में सारी चीजें हम आपको इस प्लेटफॉर्म से अवेलेबल करा पाए। तो माय डियर स्टूडेंट, आई जस्ट लाइक इन से इन शॉर्ट, बिकॉज आज मेरा दिन नहीं है बोलने का, आज आप लोगों से मुखातिब होना था मुझे, एक बार पहला क्योंकि प्रोग्राम था। तो आज का पर्पस, इसको एस्टेब्लिश करने का पर्पस मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो इनिशिएटिव लिया है क्रिएटिव ग्रुप ने, एडवाइजरी बोर्ड ने और सारी टीम ने, और जो स्पेशली हमारा 11-12 डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव साइंस एकेडमी, क्रिएटिव कॉमर्स एकेडमी, क्रिएटिव आर्ट्स एकेडमी, जो इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव आने वाले समय में भविष्य में बहुत बड़ा एक विजन साबित होगा, एक मिशन साबित होगा, जिसमें आने के बाद बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिरेकल टाइप जो हम कहते हैं, वो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से कर पाएंगे। सो आई विल नॉट टेक सो मच टाइम टुडे एंड आई वांट टू थैंक्स टू माय ऑल टीम। जॉन टी मल्होत्रा जी, वेरी स्पेशल थैंक्स टू यू सर। मैं चाहूंगा यदि सब लोग आप एक बार हैं तो यू कैन क्लैपिंग फॉर जॉन टी मल्होत्रा जी एंड दुबे जी आल्सो, जिन्होंने आज इतनी मेहनत के साथ इस पूरे मिशन को आज सफल बनाया। और मेरी सारी टीम जो 11-12 डिपार्टमेंट की है, जो उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे और पूरे अपने बच्चों को कांटेक्ट किया और साथ में इसको आज तैयार किया। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम इस मिशन को सक्सेसफुल करेंगे और एक जो नई शुरुआत हमने आज कही है, इसको हम अपने मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू विद आवर वेरी वन ऑफ द टॉप स्पीकर ऑफ माई नॉलेज विच आई हैव सीन पर्सनली। मैं डॉक्टर विवेक को भी मिल चुका हूँ, शिव खेड़ा जी को मिल चुका हूँ, मैंने कई लोग को पर्सनल मिल चुका हूँ, बट वन पर्सन हु इन्फ्लुएंस मी लाइक एनीथिंग, प्रीतम गोस्वामी सर। मैं चाहूंगा प्रीतम गोस्वामी सर को लीड दूं और आज का जो हमारा एक मेन वेबिनार है, जिसका टॉपिक लिया है, उसके बारे में सर आपको आज पूरा एड्रेस करें। ओवर टू यू प्रीतम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दीपक सर। नीरज मिश्रा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मुझे को होस्ट बना दीजिए सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड आई कैन स्टार्ट माय सेशन। Thank you. Just a moment. Let me share my screen.
ओके, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इनिशिएटिव दीपक सर। मैं समझता हूं कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, खास करके एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहां पर हजारों लोग आकर के पढ़ करके चले गए, जिस किसी भी संस्था ने अपनी एल्यूमिनाई को बनाए रखा है, उनके साथ वो कनेक्ट रहे हैं, तो मान के चलिए कि ऐसी संस्था ने एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। शुरुआत धीमी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने राइट डायरेक्शन में एक शुरुआत की है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम इस बात को शुरू करेंगे। 30-40 मिनट में मैं अपनी बात को, मैसेज को आप तक पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि मेरी एक दूसरी सेमिनार है रात को 10:15 बजे, तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। लेकिन नेटवर्क किस तरह से आपकी नेटवर्क बन सकता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जब हम इस दुनिया में देखते हैं, न सिर्फ सक्सेस अपने बिजनेस में, बल्कि करियर में, जॉब में, सोशल वर्क में, पॉलिटिक्स में और तमाम सारी चीजों में जब लोग सफल हो, तो हम उसकी तह तक, उसकी डेप्थ तक जाते नहीं और ये मालूम नहीं करते कि उसकी सफलता के पीछे क्या राज है। आज ही नहीं, आज से 20 साल पहले और आज के 20 साल, आने वाले 20 सालों में सफलता का, आपकी कनेक्टिविटी का, आपकी ग्रोथ का सिर्फ एक ही मंत्र रहेगा, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, वो है आपका नेटवर्किंग स्किल्स। तो आने वाले इस 30-40 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, और उस टिप्स का अगर आपने 15, 20, 25% भी अपना लिया, तो समझ लीजिए काफी बड़ा बदलाव आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में अचीव कर पाएंगे। इस विषय पर मेरा बहुत है, इस विषय पर वैसे तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम पूरे दिन की एक कंप्लीट वर्कशॉप कर सकते हैं, और 101% देयर वुड बी अ 360 डिग्री चेंज इन योर बिहेवियर, इन योर माइंडसेट। बट ठीक है, इसको मैं अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बोलता, इसको मैं सिर्फ एक टॉक की तरह से डिलीवर कर रहा हूँ। इस विषय पर इससे पहले मैंने 2 बार, हमारा JCI एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसका एक बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें काफी फॉरेन के डेलीगेट्स भी आए थे। वहां इसके ऊपर मेरा की नोट स्पीच था लास्ट ईयर, कोरोना शुरू होने से पहले फरवरी में। और उसके बाद जब पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ, तो श्रीलंका के से मेरे को रिक्वेस्ट आई, और श्रीलंका के करीब करीब 60-70 बिजनेस ओनर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया, और उनके लिए भी मैंने नेटवर्किंग के ऊपर एक बात किया। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नेटवर्किंग आपके लिए नेटवर्क का काम करता है। ये तो आप जानते हैं कि वी आर अ सोशल एनिमल्स, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। बिना लोगों की मदद के हम अपनी जिंदगी, कितना ही हमें लग जाए मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत शोहरत है, मेरे पास बहुत पावर है, मैं बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ा, भी लोगों की मदद, लोगों की सहायता, लोगों की फेवर हमें हर वक्त चाहिए होता है। और इसकी पावर ऑफ नेटवर्किंग का एग्जाम्पल मैं कुछ केस स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे मैं आपको मैं देने वाला हूँ। अब देखिए नेटवर्किंग का कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है। बात है 2009 की, मैं जापान जा रहा था एक ट्रेनिंग सेमिनार करने। मेरी यहाँ से हांगकांग की फ्लाइट थी, और हांगकांग से फिर मेरी फ्लाइट थी जापान की। मेरा एक प्रोग्राम था जो JCI यूनिवर्सिटी संचालित करती है, जिसको पार्टिसिपेट करने के लिए कई कंट्री से स्टूडेंट्स आए हुए थे। और ये जो प्रोग्राम था, इसमें हम किस तरह से एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाता है, उसके ऊपर उनको पूरी ट्रेनिंग देनी थी। इट वाज अ सर्टिफिकेशन कोर्स। सो आई वाज वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, और मेरा निश्चित दिन पहुंचना वहां बेहद जरूरी था, क्योंकि सारी चीजें तय थी। और जब मैं हांगकांग पहुंचा, तो हांगकांग में मेरा 4 आवर्स का लेओवर था। हांगकांग में लेओवर के बाद जब मैं जैसे ही चेक इन काउंटर पे गया, फ्लाइट शेड्यूल हुई, तो मैंने जैसे ही अपना टिकट उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला, सर आपका टिकट कंफर्म नहीं है। शायद मेरे एजेंट ने बात मुझसे छुपाई होगी कि सर आपका टिकट कंफर्म नहीं है। मैंने कहा, बट आई वाज टोल्ड दैट माय टिकट इज कंफर्म। नो सर, दिस फ्लाइट इज टोटली फुल एंड वी कांट अकोमोडेट यू, बट we can provide you a hotel inside the airport to stay, and next morning we can schedule your flight for sure. But मैंने कहा, सर मेरा आज पहुंचना जरूरी है, कल सुबह से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, and I cannot delay it. I am ready to pay extra, but I have to go. They said, sir, no chance. मैं जनरली गिव अप नहीं मारता हूँ, और मैंने कहा, आपके किसी मैनेजर से, कोई सीनियर मैनेजर से मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, सर देयर इज नो सेंस, बट ठीक है, आप चाहते तो मैं बात करवाती हूँ।
the lady arranged to talk to somebody, and she arranged my 2 minutes meeting with a senior manager of airport of that airline. So मैं जब उनसे मिला, उनकी केबिन में गया, तो उनसे पूछा, सर मेरी एक मीटिंग है, कि कौन सी मीटिंग है, किस ऑर्गेनाइजेशन? सर मैंने कहा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल का, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, उसका एक प्रोग्राम है। जैसे ही उसने JCI का नाम सुना, एक तरह से लिटरली वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। Are you from JCI? मैंने कहा yes sir, and I am an international trainer in JCI, and I am going for, there is an Asia Pacific conference and I am one of the faculty members, और मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। Fortunately, the person, the senior manager of airport authority, was also part of JCI. He understood the value of my job and my working. You will not believe, sir, he made sure that I go with the same flight. And he managed in such a way. I was traveling by economic class, but he made it sure that I travel in that flight. और उन्होंने arrange किया, and I was sent without charging a single penny. They sent me in business class. And then I realized the power of connecting with the right kind of organization, the power of networking. Similarly, I have many students and always keep connected with them through WhatsApp, through Facebook, wishing them birthdays. Even though they do not respond, I make sure that I stay connected with them. And whenever they ask for any help, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, दुबई से मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि his brother-in-law is critical and need ventilator, तो मैंने 2 घंटे सारा काम छोड़ करके उस प्रोसेस में लगा। But this is how networking takes place. So एक बात, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं दुबई में जाकर के कुछ अपने प्रोग्राम्स करूं, और वही नेटवर्किंग मेरे कोई पुराने कनेक्ट से, जिनके साथ मैं लगातार संपर्क में था, उन्होंने मेरी मदद की, and I could organize my seminars over there. So शायद हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, और हिंदुस्तान की बाहर बात चले, देश में तो कम से कम 40-45 ऐसे कंट्री है जहां मैंने अपना नेटवर्क, मेरे जानने वाले, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पार्टिसिपेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, किसी न किसी फॉर्म में मैं वहां से लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पे, बल्कि सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करता है। देखिए, जब हम नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप कुछ संस्थाओं से जुड़िए, BNI जैसी संस्था है, JCs का एक एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट कनेक्शन से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड चलते हैं, कई सारे सोशल क्लब चलते हैं, रोटरी क्लब, JCI, लायंस, इस तरह के कोई बहुत सारे आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो हमारे CA का एसोसिएशन चलता है, और डॉक्टर दीपक राज अगर स्कूल से जुड़े हुए हैं तो उनका स्कूल एसोसिएशन है, और ऐसे तमाम सारे, तो उन ग्रुप से जुड़ के हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। दूसरा, कई तरह के इवेंट्स हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो किसी की शादी हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई कॉन्क्लेव हो सकता है, कोई किसी तरह की सेमिनार हो सकती है। तो जब हम वो इवेंट में जाते हैं तो हमें कई लोगों से मिलने का और नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिलता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक फ्रेंड है, मान लीजिए दिल्ली से उनका फोन आता है, बोलते हैं यार मेरे एक फ्रेंड है जो कोटा आ रहे हैं, मैं कोटा से हूँ, वो अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, वैसे तो सब कुछ ठीक है पर आप उनकी मदद कर देना। अब मेरे पास 2 विकल्प है, मैं बोलूँ यार उनको अगर मैं फोन करूंगा मुझे 4 काम बताएंगे, मुझे ऑफिस छोड़ करके जाना पड़ेगा, बट आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, आई स्पीक टू हिम, I make sure that I meet with him at least for a cup of coffee or tea, or wherever I can help, I help a person. But why I'm investing my time and energy? Because I want to connect with that person. और वो मेरा कनेक्ट कब कहाँ काम आएगा, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो ये इस तरह के जो रेफरल्स आते हैं, कई बार मेरे पास एक फोन आता है कि सर एक मेरे दोस्त है वो आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं, वो आपसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, बहुत सारे फोन्स कनेक्शंस बनते हैं। तो रेफरल भी एक बहुत अच्छा चांस है जिसके थ्रू आप लोगों के साथ नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं। जब रेफरल्स की बात करते हैं कि लोग जब आपको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट 2 तरीके से करते हैं, तो सीधा सीधा बिजनेस के लिए कनेक्ट करते हैं। मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले फोन आया, मेरे एक नए क्लाइंट बने, उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो एक फ्रेंड है वो US में रहता है, और एक फ्रेंड है मेरा, एक दूसरा मेरे पास आया कि मेरा एक फ्रेंड है लंदन में रहता है। तो 2 अलग अलग दोस्तों से, 2 अलग अलग क्लाइंट से मुझे 2 रेफरल्स मिले कि वो लंदन वाला दोस्त इंडिया में कंपनी बनाना चाहता है, और एक US वाला फ्रेंड है वो भी एक इंडिया में स्टार्टअप कंपनी बनाना चाहता है। एक IT इंजीनियर है US में, और दूसरा एक रियल एस्टेट डेवलपर है लंदन के अंदर। अब उन्होंने तो कनेक्ट कर दिया, उन्होंने बोल दिया प्रीतम जी से मिलिए, ये उनका फोन नंबर है, और हमारी मीटिंग तय हो गई।
व्हाट्सएप पे मीटिंग होनी थी, वीडियो कॉल पे। अब जरूरी नहीं कि उसने मुझे रेफर किया है तो मुझे धंधा देगा, मुझे बिजनेस देगा। अब मुझे उसको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को बहुत मैटर करता है। किस तरह से मैं अपनी 10 मिनट की कन्वर्सेशन में उनको वैल्यू ऑफर कर सकता हूं, उनको ये एहसास करा सकता हूं आई एम द राइट पर्सन दे वर लुकिंग फॉर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात, जब आपको कोई रेफरल फेस टू फेस क्रिएट होता है तो आप उस रेफरल को इजी गोइंग में मत लीजिए, आप उसको प्रोस्पेक्ट समझिए और ऐसे प्रोस्पेक्ट को आप जरूर मिलिए। ये मत सोचिए मुझे आज बिजनेस मिलेगा। मैंने कई मेरे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स और रेफरल्स हैं जिनसे मैं 8 साल 6 साल पहले मिला था और उन्होंने मुझे 6 साल बाद मेरे से कनेक्ट करके मुझे बिजनेस दिया। तो ये कई बार पेशेंस भी रखना पड़ता है, आपको फॉलो अप करना पड़ता है उनके साथ। हो सकता है किसी ने बोला यार इनसे मिल लीजिए, आपने 4 बार फोन किया या 3 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया या रेस्पॉन्ड नहीं किया, बट ये फॉलो अप होते रहना चाहिए। कभी ना कभी इंसान कनेक्ट करेगा और आपसे उसकी मुलाकात होगी। जब आप मिलते हैं या किसी नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जुड़ते हैं, नए लोगों के संपर्क में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले 10 मिनट में आपने जो इंप्रेशन बनाया वही काफी है। ये इंप्रेशन ऑन गोइंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं यू गेट इम्प्रेस्ड विद द पर्सन, बट लेटर ऑन आपको लगता है धीरे धीरे जब उस इंसान के साथ आप आगे बढ़ते लगता है बहुत सेल्फिश इंसान है, अपने काम होता है तभी फोन करता है, या ये जब काम होता है तो मीठी बात करता है, या ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मैंने जब इसको काम बताया इसने मेरा काम नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। या कई बार आपको काम करने का मौका मिला लेकिन आप कोई काम को ठीक से नहीं कर पाए, तो आपकी पोजीशन खराब होती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस किसी भी, आप इंजीनियरिंग से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप बैंकिंग से हैं, आप बिजनेस से हैं, आपका जो भी एरिया है आप उस नेटवर्क में, उस ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ कुछ आइडियाज डालते रहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 प्रोफेशन है, एक तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा एक मेरा पैशन है ट्रेनिंग और मोटिवेशन की बात करना, सेमिनार्स करना, बुक लिखना, आर्टिकल शेयर करना। तो मैंने बहुत सारी ब्रॉडकास्ट, करीब मेरे पास 4-5 हजार लोगों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, वहां पर भी 3-4 हजार लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं वहां ऐसी चीजें जो मुझसे रिलेटेड है, कोई टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई मोटिवेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी एक मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया, उसका नाम था पॉजिटिविटी इज इम्यूनिटी। किस तरह से पॉजिटिव रह करके आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, खुशी को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी रिलेवेंट चीजें आप उस नेटवर्क में शेयर करते रहिए। आर्टिकल्स हुए, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हुई, वो आपकी एक इमेज उस जगह पर क्रिएट करता है, यार यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, और आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए जाने जाते हैं। आपकी विश्वसनीयता, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ती है और आपकी रेपुटेशन उस ग्रुप में बढ़ती है। तो ये पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ कई सालों से, और जब 4-5 साल से मैंने अपनी पोजीशनिंग करनी शुरू की रोटरी क्लब में, ठीक है मैं समाज सेवा के लिए हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, अपने आप को एक धीर गंभीर व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वहां से भी मुझे इंक्वायरीज आती है प्रोफेशन की, कंसल्टेंसी के लिए अपने आप आती है। एक होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर। कई बार ऐसा होगा कि कुछ ऐसे नेटवर्क में लोग मिलेंगे जिनके साथ मिलकर के आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बार जयपुर में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, वो वहां के काफी बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो, और मैं कुछ ऐसे काम करता हूं जो वो नहीं करता। बैंक लोन करवाते हैं 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 300 करोड़ के, क्योंकि उनका लाइफ कैसा भी से लोन ना मिले वो उसको लोन दिला देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑफर्स। सिमिलरली कोई बैंक में उसको मैनेज कर लेते हो। ठीक कुछ ही तरह से मेरे पास भी कुछ इस तरह के काम थे, एसोसिएशन किया, वो काम जो मैं नहीं करता था मैं उनसे करवा रहा हूँ। वो जो काम वो खुद नहीं तरह से बनते हैं, और ऐसे कई स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर। रिसेंटली मैंने सूरत में एक दोस्त के साथ जो एक बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई a good training program and delivering it. लेकिन जब इस तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर की आप तलाश करते हैं, मुलाकात करते हैं, आपको जानने की, और आप अपने
अगर नेटवर्क है तो मुझे कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में से मुझे मेरे आपका नेटवर्क, आपको अलायंस पार्टनर्स वर्किंग करते हैं तो हमें क्या-क्या तकलीफें आती है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर रास्ता चाहिए। नेटवर्किंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बैरियर है वो आपका टाइम प्रायोरिटी लगता ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर अपना आधा घंटा 15 मिनट अगर नेटवर्किंग पर दें, या हफ्ते में कुछ 1-2 घंटे और वो बिजनेस हो सकता है आपको आज न दे, लेकिन बड़ा अपॉर्चुनिटी ला करके रोज टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पड़ती है मदद, क्योंकि ये इससे मेरा नेटवर्क स्ट्रांग होता है। प्लस मैंने सैटरडे इस चीज के लिए लिखा हुआ है। अभी तो चलो लॉकडाउन बाहर होता हूँ और प्रोस्पेक्ट लोग जो मेरे क्लाइंट नहीं है उनसे मिलता हूँ, नए जो मेरे क्लाइंट है। मैं तो कहता हूँ कि हर दिन अगर सुबह 30 मिनट 30 मिनट में ऐसे कोई 10 नए दोस्तों से बात करूंगा जो मेरे नेटवर्क का पार्ट है, और इस तरह से अगर आप जुड़े है, यार भाई इसका तो मतलब है इसलिए फोन कर रहा है ना, इससे तो राम राम कर रहे हो, इन जनरल बर्थडे विश कर रहे हो। अभी कोरोना चल रहा है, वैसे ही अगर आपने किसी को पूछ लिया फोन करके कि भाई आप कैसा है, फैमिली, तो वो एक आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। में वो मजबूती, वो गर्म जोशी नहीं रही। विजुअल बढ़ाते तो कुछ चीजें हैं जो बहुत बड़ी आपकी वैल्यू, तीन चीजें बहुत मैटर करती है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली okay, I request those who are here don't want to listen me, or I'm also investing my 1 hour. So आपकी नेटवर्किंग में जब आप लोगों से मिलते हैं और बुराई करते हैं, मुझे जैसे, मैं उस इंसान के नहीं करता, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी, मेरी भी बुराई करोगे, क्योंकि अच्छाई बुराई तो हर इंसान में, जो चीजें मैटर करती हैं, बैठते हैं किस तरह करते हैं, किस तरह से लोगों की कन्वीनियंस, दूसरे आपने बुलाया है, आप किसी दूसरी फोन कॉल करती है और नुकसान भी करती है। और कुछ बैड हैबिट्स, कुछ लोगों को टॉपिक को होती है, यहाँ इसलिए लिखा हुआ है साथ मिलते हैं तो मैंने देखा है कि कुछ लोग कुछ भी बात कर स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग पीपल, गेटिंग ऐसे, तो कई बार का ख्याल हमें रखना हमारे लिए काम करती है। दूसरी एक और चीज होती है कि और हमें लगता है कि आप, दूसरी बात यह है कि
मीडिया या ईमेल पर और कई बार होता कई बार हम तो ये कहते हैं या कभी मेरे ऑफिस आओ, दूर है तो लेट अस मीट एट द। एक और में है कि बात करो पूछे जा रहे हो तो इन बात रखना चाहिए। द बेस्ट वे गए हो वो टाइम लेकर आपसे मिलने आया या आप किसी सेंटर पॉइंट में मिल जूम मीटिंग शेड्यूल की बातें कर रहे हो एक दूसरे के। सो वन थिंग नए रेफरल से मिलते हैं बात करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे रिजेक्ट ना कॉन्शियस रहता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के। और मुझे बोला कि उस IAS ऑफिसर या था कि पता नहीं इसका लेवल इतना नहीं है उसकी कंपनी के जिसका CEO से मिला बैड एक्सपीरियंस क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हिला। पर ये मान करके चलिए कि निकालना पड़ेगा और इसीलिए मैं मिल करके जाए तो इसके बारे में अपने पर्पस के बारे में थोड़ी प्रिपरेशन तो आपको वो लोग आपको बिजनेस देते हैं कनेक्टेड रहते हैं। बाकी ऐसे हो सकते बहुत सारे लोग आएंगे किसी के साथ आपकी नेटवर्किंग स्किल तो आप एक्टिव रहना एफर्ट्स करने पड़ेंगे के साथ और आपको पड़ेगा। जब आप शूट से ख्याल रखें आप के साथ मीटिंग है बोले कम और लोगों को मिलते हैं लेकिन वो बहुत सारे के साथ मिले आप अपनी बात कम बताएं और बहुत सेशन से स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन न पूछे जिससे सामने सकता है या कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करिए क्योंकि यहाँ पर हमें कई लोग तो हमने एक अटैक्स इनकम टैक्स कमीशन सबको उसका हिस्सा बनाना इनकम टैक्स कमीशन से मिलने चाहिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि मने और इस कैंप में हिस्सा थे ज्यादा मिक्स नहीं तो कई सारे पब्लिक सर्वे जब हम हमारे एसोसिएशन साथ मिलने गए तो हमें कोई बहुत 2-4 मिनट में मेरा रवाना। अब यहाँ मेरे पास बनाने का क्योंकि मैं अकेला तो मैंने उनके अच्छे हैं कम बोल शरीफ इंसान है रिजर्व होने की वजह से इनवाइट करोगे थोड़ा उनका तो ये जब मैं और एक दो सोच के पहले मालूम
को मैंने बोला आपने टाइम लिया, टू स्वामी, मुझे मालूम था उन्हें इंटरेस्ट होता। वो गया और विदिन आपको बुला रहे हैं, ही वाज लुक दे दिया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए और उसको बोला कि मिस्टर गोस्वामी, मैंने उनके शहर के थी, तो उनका सिलसिला मैंने रिक्वेस्ट लेके आया हूं। जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त चाहते कि आप जैसे जो टॉप क्लास का इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने उनको ईगो को सेटिस्फाई नहीं बोलते, उनके साथ से इतनी सारी चीजें थी। ये दिवाली के पहले मैंने कहा सर वीआईपी लोगों के लिए चाहिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात 8-10 मैंने इनकम फोन किया, मैंने कहा सर लेके आ सकता हूँ कि नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उन आप रहते कहाँ हो। फिर मैंने एक दो मेरे साथियों से उनका पता ठिकाना मुझे की बात है, और कुछ 7 बजे पहुंचा, वहां तो फैमिली बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे जैसे कि मैं कोई बहुत दोस्त, और बहुत देर तक मैं अच्छा सा सत्कार किया। वर्किंग हुई, मैंने कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू नेटवर्क, पर बाद में काफी बार उनसे मिलना, एक वह सामान्य व्यक्ति के लिए एक्सेस उसके साथ बात करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो पते, ईमेल आईडी, ये कॉन्टैक्ट्स को नहीं करते, या आपकी कोई ऐप है और वो इसमें आप अपने साथ ऑफ बर्थ, उनका बिजनेस का, वरना क्या फोन नंबर सेव कर लेते और उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, आप कितने काम के इंसान हो प्रॉपरली, से आप मिलकर के आज नेटवर्किंग कॉल करना चाहिए, उससे कांटेक्ट लोगों से मेरी मुलाकात हुई, दिन में उनको एक मेल या फोन कॉल करूंगा, और आप एक्सपेक्टिंग, और फिर आपने जो फॉलो अप हो, भले ही मैसेज ही क्यों ना हो, सीनियर सीए हैं,
DLF जो इंडिया की मानी हुई रियल एस्टेट कंपनी, उसमें मैनेजर बहुत हाई पोजीशन पे, और अपने बारे में भी बताएं। उनके साथ मेरा वीडियो शेयर कर, मना कर ही नहीं सकता। मतलब तरीका है से आप मिले नहीं है, लेकिन आप जनरली आपने ट्राई किया, वाला रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपका, तो आगे बढ़ जाइए। उसको जरूरत होगी, वो कभी आप, मेरे साथ हुआ है, लेकिन उनको परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। 2-3 लोग हैं जो अगले 3 काम होता है तो याद आ ही जाता है। और करने के लिए जरूरी है कि आप 2-1 बात करें तो सारा इंसान के ऊपर होना चाहिए, और मैं नहीं कहता वर्ग बनाइए, लेकिन आपका आपके लिए काम के नहीं है या काम के नहीं है, तो धीरे धीरे छोटा कर सकते हैं। के लिए लोगों से फेवर करने और विश्वास 3 चीजों से जीता जा सकता है। जरूरत नहीं होती आपके व्यवहार से, तरीके से, आपके काम करने के काम करें। लोगों ने कोई आपको काम कर रहे हैं तो आपके काम में निरंतरता होनी चाहिए। एक बार अच्छे से नहीं कर रहे, एक बार बहुत भरोसा नहीं, कभी कोई काम कर, और हमेशा लोगों को मदद करें। कब कौन आपको नहीं पता दोस्त, तो इंसान मेरे इतना हेल्प तैयार रहें के लिए। पड़ेगा और विजिबल रहने की लेनी पड़ेगी। बात करके खाना खा के आ गए, कई बार संचालित करते हैं। मैं तो ये वॉलंटियर बढ़ा करके कोई जिम्मेदारी ले, अपना टाइम लगा छोड़ करके, बिजनेस को छोड़ कर इसमें जाना जाता है। बैठे बैठे अगर चेन्नई में मैं 15 मिनट में यहाँ बैठ सकता हूँ, लेकिन ये कि आपने आपको वॉलंटियर इसमें अच्छा, ये आदमी बोलने में अच्छा है, ये अच्छा सी है, लोगों के इंटरेस्ट। अगर ऐसा कोई इनकम टैक्स जो डॉक्टर से रिलेटेड है, अगर मेरा स्कूल वालों का ग्रुप है, मेरे हैं, उनसे रिलेटेड को शेयर करता हूँ। उस बात का ख्याल रखें। आपको सेमिनार्स में जा लोग आपकी ड्रेस से, आपकी अपीयरेंस से नोटिस करते हैं, तो यू शुड बी, तो लोग आपको अलग लहजा और उस वक्त बात नहीं करेंगे, बोलेंगे यार बहुत एरोगेंट दिख, से मिलते रहिए, एंगेज, कुछ काम करते रहिए, किसी
तो ये चीज है जो क्योंकि जैसा मैंने कहा ये प्रोग्राम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर नेटवर्किंग में आपको बहुत मदद करेगी। हमारे सोशल मीडिया से मेरा भी एक्टिव, चाहे मेरा इंस्टाग्राम लिंक्डइन का या मैं किसी कंपनी का सी से मेरे पद मेरे बिहेवियर चीज वहां से लगनी फाइल के साथ मैच नहीं करती होता है। का बिजनेस करते हैं आप क्या ओके सीखिए कि जब भी लोगों से अपना इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं सुन सकते आप, आपकी जिंदगी का सार उसको समझ में आ जाए। ये भी एक बहुत बड़ी, कल को मान लीजिए आपकी किसी के रेफरेंस से मुलाकात होम सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर देने में बेताजी तो काम सेकंड में अपने बारे में चीज देखे दोस्तों, केवल आप एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग बोला जाता है गिवर्स गेट। मैं कैसे लोगों के मेरे अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज हो सकता है, आप ताज्जुब करेंगे मेरे इतने क्लाइंट जो कोई इंसान मिलता है, इंसान मेरे मैंने आपस में एक दूसरे को क्लाइंट्स को मैंने बिजनेस दिलवाया। यू हैव टू बी यूजफुल। की मीटिंग होती है शुरू बिजनेस के बारे में ज्यादा बात, आप बिजनेस के बारे में ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करिए ही आप लोग अपने आप पहली बार में ही आप काम की को लाइक नहीं करते। 40-45 मिनट में भी ये क्लेम नहीं करता कि शायद मैं आज भी अगर करने के मामले में मैं 5 से ज्यादा नहीं भी बहुत कुछ सीखना, मैंने से भी बेहतर लोगों को ओशन है लोगों से। नेटवर्क इज अ नेटवर्क। अगर बहुत बड़ा लोगों का एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, नेटवर्किंग बेहद आप बहुत बड़े स्कोर, लेकिन इफ यू आर नॉट